So this chapter is boundary layer theory. Boundary layer theory. So what are we going to study in boundary layer theory? There will be a plate given. So there will be a flat plate given. Yes, there will be only a flat plate given in which uh, air or any fluid is flowing with u infinity velocity. U infinity is local external velocity or velocity with which it is flowing, and this velocity is same everywhere. Now when this strikes the surface, this forms a boundary like this. This flow can be laminar, can be turbulent, can be anything. But when it will strike this plate, it will first turn into laminar, then afterwards, if possible, then it will turn into turbulent flow. This is the thing. Now, how this happens? Because this first layer, when it comes in contact with this, it will stick to it, so velocity is 0. So first condition, at y is equal to 0, u is equal to 0, at any x, you understanding why I'm x is written, why I'm writing x, because it will be useful in the later pages. At any x, you take any x, the velocity at y is equal to 0 will be 0. So the thing is this. Now one important thing, this region will be viscous region, and this region will be non-viscous region. What is meant by viscous region, non-viscous region? So I will explain what is meant by viscous region and non-viscous region in a second. So as I said, this is a viscous region and this is a non-viscous region. So because in viscous region there will हमें मिलेगा d ओपन dy. d ओपन dy जीरो नहीं होगा, मतलब वेलोसिटी जो y के साथ चेंज हो रही है, तो y के साथ shear stress प्रोड्यूस होगा, टाउ shear stress प्रोड्यूस होगा, जो होगा म्यू d ओपन dy. अब ये shear stress तो इस डायरेक्शन में है और वेलोसिटी ग्रेडियंट तो इस डायरेक्शन में, तो ये कैसे? तो shear stress डिफाइंड ही ऐसा, देखो जैसे फर्स्ट चैप्टर में shear stress जब ऐसे लगता है तब ऐसा मूवमेंट होता है, ये वेलोसिटी का ऐसा मूवमेंट जाता है, ये लेंथ अलग अलग हो जाती है. तो देखो वाई डायरेक्शन में लेंथ अलग अलग, तो shear stress की वजह से प्लेट्स की वेलोसिटी में अगर shear stress लगाएंगे तो दो लेयर की वेलोसिटी में डिफरेंस आएगा, तो इसलिए shear stress इस डायरेक्शन में हो और वेलोसिटी इस डायरेक्शन में. सो नो वरीज. That's why shear stress is equal to non-zero because velocity gradient is non-zero. Now if there is a shear stress between layers, there will be a shear force between the layers, which is called drag force. Drag force between layers will be non-zero and this flow is viscous flow. और हाँ, ये जो टाउ है, वन इम्पॉर्टेंट थिंग, टाउ shear stress, ये फंक्शन है एक्स का. फंक्शन एक्स का मतलब यहाँ shear stress अलग वजह, जैसे हम मोस्टली में वॉल shear stress निकालना होता है तो टाउ नॉट इज इक्वल टू म्यू डी ओपन डी वाई एट वाई इज इक्वल टू 0. तो ये जो वॉल shear stress है ये एक्स के साथ साथ वेरी होता रहता है, एक्स के साथ साथ वेरी होता है, और यहाँ नहीं दिख रहा पर दिखेगा, जैसे कि टाउ नॉट का एक और फॉर्मूला है. इससे आप देख सकते हो कि एक्स के साथ साथ टाउ भी वेरी होता है, जैसे जैसे एक्स बढ़ता जाएगा टाउ घटता जाता है, shear stress घटती जाती है. तो शुरुआत में बहुत ड्रैग फोर्स, मतलब shear stress घटती जाती है तो ड्रैग फोर्स भी घटता जाता है. तो शुरुआत की लेयर्स, शुरुआत में हमें बहुत ड्रैग फोर्स लगाना पड़ता है, बाद में ड्रैग फोर्स कम होता है. यस डेफिनेटली टाउ वॉल वेरीज विथ एक्स, मतलब shear stress at each x is different and is decreasing. So shear stress is a function of x. That's why drag force is function of x and varies with x. Yes.
एंड वन मोर इम्पोर्टेंट, देयर इज नो टर्म लाइक, देयर इज नो, जैसे हम एवरेज वेलोसिटी डिफाइन करते हैं कि एवरेज वेलोसिटी ये होगी, बट देयर इज नो टर्म लाइक एवरेज शियर स्ट्रेस, there is no term like average shear stress by Praveen Kulkarni. This was told by Praveen Kulkarni. I heard it clearly. He told that there is no term like average shear stress. Now we will go one by one. Now at each axis will be different. Inner flow region also known as shear region. This is not important. इनर फ्लो रीजन में फिर इस रीजन में क्या, डी ओपन डी वाई नॉन ज़ीरो, shear stress नॉन ज़ीरो, फोर्स ऑफ ड्रैग और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नॉन ज़ीरो है। इसके अंदर जो फ्लो है वो विस्कस फ्लो है, और विस्कस के साथ साथ रोटेशनल फ्लो भी। वन पी वाई क्यू, आई सॉ दिस, नो नॉट पी वाई क्यू, वन एंड प्रवीण कुलकर्णी क्वेश्चन, आई सॉ दिस क्वेश्चन। अब बर्नौली, अब एक और बात है इम्पोर्टेंट है कि डी पी अपन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, मतलब जब हम बाउंड्री लेयर थ्योरी पढ़ते हैं तब हम प्रेशर का वेरिएशन नहीं मानते किसी भी एक्स पे। सो प्रेशर ग्रेडियंट अलोंग एक्स इज ज़ीरो। बर्नौली क्वेश्चन इज नॉट वैलिड। क्यों? बर्नौली क्वेश्चन इसमें कहीं भी वैलिड नहीं है इनर रीजन में, क्योंकि विस्कस फ्लो है। विस्कस फ्लो मीन्स फ्रिक्शंस ड्रैग, तो एक्सटर्नल फोर्स के केस में विस्कस तो सॉरी बर्नौली क्वेश्चन तो वैलिड होती नहीं, इसलिए बर्नौली क्वेश्चन वैलिड नहीं है। नाउ द सेकंड टर्म इज आउटर फ्लो रीजन, द फ्री, ये रीजन आउटर फ्लो रीजन। बर्नौली वैलिड है, ये रोटेशनल है, फोर्स ऑफ ड्रैग ज़ीरो है, फोर्स ऑफ शेयर स्ट्रेस ज़ीरो है, ये ग्रेडियंट ज़ीरो है। इसका मतलब जो यहाँ पे हर लेयर जो जा रही है उसकी वेलोसिटी सेम है, और वो है यू इन्फिनिटी। एक बाउंड्री लेयर थ्योरी में वेलोसिटी है जिसकी वजह से सारी दिक्कत आती है, यानी लाइक ड्रैग लिफ्ट फोर्स जनरेट। यस, okay, so this was the basics of boundary layer theory.